بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے. کوسچن آنسر کی ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے میں تمام اسٹوڈنٹس کو اور جتنے بھی ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس ہیں یا دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کو ایک دو کوسچن کا بھی اگر فائدہ ہو گیا تو یقین کریں کہ آپ کے لیے برکات اور اس میں سب کا فائدہ ہے. اچھا, کوسچن نمبر 9 کو ڈسکس کرتے ہیں. What changed the course of the battle of Uhud? وہ کیا چیز تھی جس نے جنگ احد کا یا غزوہ احد کا پھانسا پلٹ دیا؟ جب تیر انداز ایک ملحقہ موت سے خندق سے جو اتر کے نیچے آگے تاکہ قریش کی پیچھے ہٹتے ہوئے قریش کے کیمپ سے کچھ چیزیں لے لیں, مال غنیمت لے لیں, تو اس وقت صرف پیچھے اس جگہ پر اس چوکی پر 10 تیر انداز رہ گئے تھے. خالد بن ولید جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے دیکھا کہ چند ایک تیر انداز وہاں پہ رہ گئے اس جگہ پہ. وہ بھاگتے ہوئے وہاں گئے اور اس جگہ پہ 10 ایک مسلمان تیر اندازوں کو قتل کرتے ہوئے, شہید کرتے ہوئے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان 10 تیر اندازوں کو شہید کر دیا اور قبضہ کر لیا. قریش نے مسلمانوں پر عقب سے بھی اور سامنے سے بھی حملے کرنے شروع کر دیے, اور یہی وہ چیز تھی جس نے غزوہ احد کا پھانسا پلٹ کے رکھ دیا. Question number 10 آتا ہے, what was the confusion regarding the companions who bore resemblance to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? وہ صحابی جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی, ان کے حوالے سے کیا کنفیوژن پیدا ہو گئی؟ یہ اس کا جو وہ آنسر پوچھ رہے ہیں جی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تھا, اور جن کی کچھ جسمانی مشابہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. لڑائی کے دوران گر گئے اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے. جب قریش نے ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مارے گئے. تو مسلمان جنگجو جو تھے وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور جنگ میں, لڑائی میں انہوں نے دلچسپی بھی کھو دی. جب انہوں نے وہ چیخو پکار دشمن کی سنی تو انہوں وہ دلچسپی بھی کھو بیٹھے اور حوصلہ بھی ہار گئے. کوسچن نمبر 11 بنتا ہے جی, who took the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam out of the pit to a safer place? کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گڑھے سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر لے کر گیا؟ اس کا آنسر بنتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مقام پر نہ دیکھ سکے جہاں وہ قیام پذیر تھے, آپ رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے اس جگہ پہ گئے اور پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں زخمی حالت میں پڑے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے سے نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو ایک محفوظ مقام پر لے گئے. کوسچن نمبر 12 بنتا ہے کہ کس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملہ کرنے کی ذمہ داری سونپی؟ آنسر اس کا بنتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دشمن پر
जवाबी हमला करने की या कुरैश के खिलाफ जवाबी हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने मुसलमानों को इकट्ठा किया, उनका हौसला बढ़ाया लड़ने के लिए, और इस्लाम की अजमत के लिए लड़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला दुश्मन पर बिजली किसी तेजी से लग के और दुश्मन के दफाई असार को तोड़ के रख दिया। क्वेश्चन नंबर 13, who did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam send his own sword to continue fighting? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे अपनी तलवार अता फरमाई कि जंग को जारी रखे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाती तलवार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को सौंपी, क्योंकि उन्होंने वो अपनी तलवार जंग के दौरान तोड़ बैठे थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने मुसलमान जो आर्मी थी, मुसलमान फौज थी, उसको इकट्ठा किया और फिर एक नए जज्बे के साथ दुश्मन पर हमला किया, जिसने कुरैश को मजबूर कर दिया कि वो मैदान जंग से भाग खड़े हों। इस नए जज्बे को देखते हुए और हिम्मत को देखते हुए कुरैश के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो जंग छोड़कर भाग निकले, मैदान जंग को छोड़कर भाग निकले। उनके पास कोई बाकी जो है ऑप्शन ही नहीं था कि वो मैदान जंग में स्टे करे। क्वेश्चन नंबर 14 बनता है कि व्हाट डिड अबू सुफियान बोस्ट अबाउट व्हेन लीविंग द बैटल ग्राउंड? मैदान जंग को छोड़ते हुए अबू सुफियान ने क्या शेखी बिगाड़ी? तो इसका आंसर ये बनता है कि जबकि मैदान जंग को छोड़ते हुए अबू सुफियान शेखी भरे अंदाज में चिल्लाया कि उन्होंने मैदान बदर में या गज़वा बदर की जो उनकी शिकस्त थी उसका बदला उन्होंने ले लिया या वो ले चुके थे। और उसने ये भी कहा कि वो जल्द ही एक और जंग में हिस्सा लेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ होगी और जिसमें मुसलमानों का जमीन से सफाया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, हाउ वाज द मिस्टेक ऑफ द आर्चर्स टैक्टिकल मिस्टेक? तीरंदाजों की जो गलती थी वो किस तरह तदबीरी गलती करार पाई? अच्छा, इसका आंसर बनता है कि तीरंदाजों की जो तदबीरी गलती थी वो इस वजह से तदबीरी गलती जो गलती थी वो इस वजह से तदबीरी गलती कहलाई क्योंकि हिकमत अमली के हवाले से उन्होंने एक बहुत अहम चौकी को छोड़ दिया था। जंगी हिकमत अमली के हवाले से बहुत अहम चौकी को वो छोड़ चुके थे और उस चौकी को छोड़ते हुए मुसलमान जो है वो अकब से जो है वो दुश्मन के अकब से मुसलमान जो है वो दुश्मन के लिए जो है वो आसानी हो गई थी मुसलमानों पर हमला करना अकब से दुश्मन के लिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो ये एक तदबीरी गलती थी, इसकी थोड़ी सी मैंने सेटिंग करनी और साथ साथ सामने से भी मुसलमानों पर हमला करना आसान हो गया था। अकब से भी आसान हो गया था, सामने से भी आसान हो गया था हमला करना। ठीक है, और ये जो गलती थी इसने जंग का पासा पलट के रख दिया। क्वेश्चन नंबर 16 बनता है कि व्हाट डिड द कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्न फ्रॉम द बैटल ऑफ उहद? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्होंने जंग उहद से या गज़वा उहद से क्या सीखा? इसका आंसर ये बनता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्होंने बहुत ही अहम और बेशकीमत सबक जंग उहद से सीखा। वो ये बात समझ गए थे कि उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को या हुक्म को बिल्कुल रद्द नहीं करना चाहिए था, इग्नोर नहीं करना चाहिए था, भुलाना नहीं चाहिए था। अतात एक ऐसा लेसन था जो उन्होंने सीखा और उन्होंने ऐद किया कि वो कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत को आइंदा उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर
17 बनता है कि हाउ वाज द बैटल ऑफ उहद एन एक्सटेंशन ऑफ द बैटल ऑफ बदर, कि किस तरह गज़वाए उहद गज़वाए बदर का तसलसल थी। आंसर इसका बनता है कि चूंकि मुसलमान जो है पहले से ही और बड़ी आप ये कह दें कि सख्ती के साथ कुरैश को आप ये कह दें उनको शिकस्त दे चुके थे जंग बदर में, गज़वाए बदर में। यही वजह थी कि जो जंग उहद थी वो जंग बदर का शाखसाना थी या जंग बदर का एक तसलसल थी। वो मुसलमानों से जंग उहद में गज़वाए बदर का बदला लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 18 बनता है कि जो समझदार लोग थे या साहिब दानिश लोग मदीना में रहने के हक में थे, जबकि जो नौजवान लोग थे वो चाहते थे कि दुश्मन को खुले मैदान में मिले। तो ये हिकमत अमलियां जो है, ये हिकमत अमलियां जंग में बूढ़ों और जवानों की नौयत पर क्या रोशनी डालती हैं, ये सवाल है जी। इसका आंसर ये बनता है कि जो अक्लमंद लोग थे, जो साहिब दानिश लोग थे, उनकी ये राय थी कि मदीना में रहा जाए, और ये भी जाहिर करता है कि वो सारे के सारे अच्छे खासे तजर्बाकार थे, बुर्दबार थे, मुदब्बर थे, और उनका ये ख्याल था, उनका ये ख्याल बड़ा मुनासिब ख्याल था, उनकी ये राय बड़ी मुनासिब राय थी, क्योंकि वो जंग की जो ट्रिक्स थी, जंग की आप ये कह दें कि जो टैक्टिक्स ऑफ वार थी, उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बूढ़े लोग, जो जवान लोग थे, वो बड़े जज्बाती किस्म के थे और इमोशनल भी थे, जोश जज्बा ही था उनके पास। ठीक, चनाचे वो चाहते थे कि दुश्मन के साथ मदीना से बाहर लड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 बनता है कि क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो सहाबाए कराम थे उनको हुक्म दिया कि मैदान उहद में ऊंची जगह पर चौकी पे कब्जा करके रखिए। इसका आंसर बनता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम को हुक्म फरमाया था कि मैदान उहद में एक ऊंची जगह पे आपने कब्जा करके रखना है, क्योंकि जो दुश्मन है उसे आसानी से, क्योंकि वहां से दुश्मन आपको आसानी से नहीं देख सकता और हमला भी नहीं कर सकता। तो जो मुस्लिम आर्मी थी वो दुश्मन के सरों पर, एग्जैक्टली दुश्मन के सरों पर हमला कर सकती थी उस चौकी से। यही बेहतरीन टेक्निक थी कि दुश्मन से इसके जरिए कम से कम ताकत के साथ और कम से कम खतरा मोल लिए नुकसान पहुंचाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 20 बनता है कि why were the Muslims demoralized at one stage of the battle? जंग के एक मरहले में मुसलमान क्यों मायूस हो गए थे? इसका आंसर बनता है कि जंग के एक मरहले में मुसलमान इस वजह से मायूस हो गए थे कि कुरैश ने चीखो पुकार शुरू कर दी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मारे जा चुके थे, और उन्होंने समझा कि उनकी जो जंग है वो फजूल है, बेमानी होकर रह गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बगैर। यही वो मरहला था जहां वो हिम्मत हार बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 21 बनता है कि कुरैश अपनी जुज़वक्ती फतह का फायदा उठाने में क्यों नाकाम रहे? इसका आंसर बनता है कि कुरैश अपनी जुज़वक्ती फतह का फायदा उठाने में इस वजह से नाकाम रहे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्लिम आर्मी को, मुस्लिम फौज को इकट्ठा किया और उनको हौसला दिया इस्लाम की अजमत की खातिर लड़ने का, और आपने दुश्मन के खिलाफ एक आप ये कह दें कि एक हमला किया और दुश्मन की जो डिफेंस लाइन है, दफाई हिसार है, उसको तोड़ के रख दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला और आप रज़ी अल्लाह ताला के जो साथी थे वो उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक कि वो दुश्मन को पसपा करने में कामयाब ना हो गए, और दुश्मन जो है वो अपनी जो जुज़वक्ती फतह है उसका फायदा ना उठा सकता।
सगादा जो जंग के इब्तदाई मरहले में उन्होंने हासिल की थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 बनता है कि व्हाई इज द बैटल ऑफ बदर ओहद कॉल्ड अ ड्रॉन बैटल, कि गजवा ओहद को बराबरी का गजवा क्यों कहा जाता है? तो गजवा ओहद को बराबरी का गजवा इस वजह से कहा जाता है कि ना तो मुसलमान और ना ही कुरैश जो है वो कोई खास फतह हासिल कर सके। कुरैश किसी भी मुसलमान को कैदी ना बना सके, और दूसरी तरफ बहुत सारे मुसलमान शहीद भी हो चुके थे। लेकिन कुरैश की सफों में हलाकतें बहुत ज्यादा थी, मुसलमानों की सफों से कहीं ज्यादा कुरैश की सफों में हलाकतें थी। अच्छा, आगे जी एक्सटेंडिंग में मजीद क्वेश्चन इसके बनते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23, अगर तीरंदाज बुलंदी पर मौजूद चौकी को न छोड़ते तो कुरैश को एक और जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ सकता था, और इसके मुसलमानों के मुस्तकबिल पर किस किस्म के दूर रस नताइज मुरतब हो सकते थे? इसका आंसर बनता है कि अगर मुसलमान तीरंदाज चौकी को न छोड़ते और कुरैश को एक जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ सकता था, और मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए इसके जो नताइज थे वो मादी नुक्ता नजर से कोई बहुत बड़े हो सकते थे। जो मुसलमान थे शायद वो अपनी कीमती जिंदगियां जो है उनसे हाथ ना धो सकते या हाथ ना धो बैठते, और वो एक बहुत बड़ी फतह दुश्मन के कैंप से हासिल कर सकते थे, और उन्हें मुस्तकबिल करीब में ही एक और जंग का या एक और गज़वे का सामना न करना होता, और ये इस्लाम को और मुसलमानों को ताकतवर भी बना सकता था अगर ये गलती ना होती तो। क्वेश्चन नंबर 24 बनता है कि अपना जो मुस्लिम हिस्ट्री का आपके पास नॉलेज है इसको दोबारा अपने जहन में लाइए, जिसने साबित कर दिया कि मदीना में रहते हुए जंग करने और दुश्मन को शहर का मुहासरा करने दो वाली पॉलिसी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बजानत थे, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी ये थी कि मदीना में रहते हुए जंग करनी है और दुश्मन को शहर का मुहासरा करने देना है। इसको साबित करने की ये सही पॉलिसी थी या सही हिकमत अमली थी। अब गज़वा अहज़ाब आ जाता है जी, इसके बाद बिल्कुल 2 साल बाद गज़वा ओहद के एग्जैक्टली 2 साल बाद गज़वा अहज़ाब आ जाता है, जिसने ये साबित कर दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहने की राय देने में हक बजानब थे और कुरैश को शहर का मुहासरा करने देने में हक बजानब थे। और इस गज़वे में मुख्तलिफ कुरैश के जो दुश्मन के मुख्तलिफ कबाइल थे वो इकट्ठे आए और उन्होंने मदीना का मुहासरा कर लिया। मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी खंदक पूरे शहर के गिर्द खोद के रख दी और जंग 1 महीने तक जारी रही और आखिरकार दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर वापस चला गया। चुनांचे इस्लाम का हक और सच पर होना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक और सच पर होना इस गज़वे में साबित हो गया कि इस गज़वे में वही हिकमत अमली जो गज़वा ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड की थी, गज़वा इस अहज़ाब में अपनाई गई तो मुसलमान जो है वो बड़ी जल्दी फतह हासिल कर गए। एक्सटेंडिंग में एक और क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 25, is it wise to act upon the advice of the leader? Explain. क्या रहनुमा की नसीहत पर अमल करना समझदारी की बात है? इसकी वजाहत करें। हमें लाजमन अपनी रहनुमा की नसीहत पर अमल करना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें अपनी रहनुमा को चुनने के हवाले से बड़ा ही मोहतात रहना चाहिए
کیونکہ ایک دفعہ جب ہم نے اپنا لیڈر چن لیا، رہنما چن لیا، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ایڈوائس پر، اس کی نصیحت پر عمل کریں۔ ایک اچھا رہنما ہمیشہ اپنے پیروکاروں کی فلاح و بہبود کی سوچتا ہے، کمیونٹی کی فلاح و بہبود کی سوچتا ہے، اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کی سوچتا ہے۔ اگر کسی بھی مقصد میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی ایم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، گول میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی مقصد ہے آپ کا، کوئی منزل ہے آپ کی، تو پھر آپ کو اپنے رہنما کو فالو کرنا ہوگا۔ اس طرح ایک رہنما جو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپس میں ملاتا ہے اور ان کو ان کے مقصد سے سرشار کرتا ہے، مقصد کی طرف لے کے آتا ہے اور ان کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے رہنما کی ایڈوائس کو، اس کی نصیحت کو فالو کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کامیابی کی کلید اسی میں ہے کہ اپنے سچے رہنما کو کی پیروی کرنا، یا اس کی پیروی کریں۔ ٹھیک ہے، ہیو اے نائس ٹائم۔ اس کے بعد ہم لینگویج اسٹڈی کی طرف آئیں گے اور اس کو دیکھیں گے جی، ٹینسز کا استعمال ہم سیکھیں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ تو وقتی طور پہ فی الحال جو ہے وہ خدا